that is minimum allowance should be provided to the Anganwadi workers, minimum not less than 25,000 rupees, and for the workers, for the helpers, minimum 20,000 rupees. And the second demand is ESI medical benefit may be extended to Anganwadi workers and helpers. And the third one is retired Anganwadi workers and helpers may be provided with a minimum pension of not less than 5,000 rupees, for which I urge upon the government to come out with a government bill so as to provide all these benefits to Anganwadi workers and helpers. I request the honorable government to respond. आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर फिर से स्वागत है। अभी आपने 10-15 सेकंड का जो क्लिप शुरुआत में देखा, उसका पूरा 3-4 मिनट का जो क्लिप है, जो वीडियो है, जो भारत के लोकसभा में जो है शून्यकाल के दौरान जो है केरल से आरएसपी पार्टी के सांसद जो कोल्लम लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, एनके प्रेमचंद्रन जी, उनके द्वारा जो है आंगनबाड़ी वर्कर के बारे में जो भी परेशानी है, सरकार से जो भी मांग है, चाहे वो मानदेय के संबंध में हो या फिर उनको रिटायरमेंट देने के संबंध में हो, उनको पेंशन देने के संबंध में हो, और उनको जो काम दिया था उसके बारे में सरकार से सीधे फिर से जो है संसद के इस शीतकालीन सत्र में ही जो है उन्होंने सरकार से ये सवाल उठाया हुआ है। और यहाँ तक उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी इसके संबंध में दायर किया हुआ है और रिक्वेस्ट किया कि सरकार इस पर कानून लेकर जल्द आए या फिर इसमें कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स को सहायता प्रदान करे। पहले आप पूरा वीडियो उनका देख लीजिए, तो उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में। मैं आपको समझाऊंगा जरूर, क्योंकि पूरा इनका लेक्चर जो है या फिर संसद में इन्होंने जो चीजें डिमांड की है वो इंग्लिश में है, क्योंकि ये केरल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और केरल साउथ इंडिया में ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। बहुत सारे लोग इनको समझ पाएंगे, लेकिन जो भी लोग नहीं समझेंगे, जो भी सेविका सहायिका नहीं समझेंगी, मैं आपको आगे वीडियो के बाद आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को जितना हो सके लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक से अच्छा लगता है, मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आता हूँ। साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि संसद में क्या हो रहा है, सरकार इस पर जवाब दे रही है या नहीं दे रही है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। श्री एनके प्रेमचंद्रन जी, Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, my zero-hour submission is relating to the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. I hope that the entire House will associate with me the submission to be made, because the Anganwadi workers and helpers, their life is very pathetic situation. So the salary and benefits of Anganwadi workers are meager and they are not able to meet their essential day-to-day expenses. But at the same time, the responsibility of the Anganwadi workers and helpers are very high, but the benefits available to them is very, very less. It is negligible. Even in my state, even the Anganwadi teachers, that is workers, the salary is less than 13,000 rupees per month. This is a meager allowance being provided to the Anganwadi workers and helpers. Sir, so my submission is, they have the demand, and I have given already a private member bill has already been introduced, and in which I have demanded for extending ESI benefit to the Anganwadi workers. So far it has not been considered. So since it is, and since the responsibility is very high and they have to retire without getting any pension, there is no retirement benefit, nothing is there. After 20 years, 30 years of service of a Anganwadi worker and helper, she has to retire without getting a single pie as pension or gratuity or insurance. Nothing is there. There is no medical benefit, nothing is there. So my submission is, I request the government to come out with an official bill providing the following facilities, that is minimum allowance should be provided to the Anganwadi workers, minimum not less than 25,000 rupees, and for the workers, for the helpers, minimum 20,000 rupees. And the second demand is ESI medical benefit may be extended to Anganwadi workers and helpers. And the third one is retired Anganwadi workers and helpers may be provided with a minimum pension of not less than 5,000 rupees, for which I urge upon the government to come out with a government bill so as to provide all these benefits to Anganwadi workers and helpers. I request the honorable government to respond it. And sir, this is a very important matter. I hope that the government will respond to it. Cabinet ministers are there, but unfortunately they are not even listening to it. It is quite unfortunate. So we are seeking a response from the government regarding the Anganwadi workers and the Anganwadi helpers, extending the benefit to them. That has to be taken very seriously, because it is a central as well as the state-sponsored scheme. They have to be protected. They are the major force of our country. Sir,
करना चाहते हैं, प्लीज सेंड योर स्लिप्स। So once again, I urge upon the government to consider this request. Thank you very much, sir. जी, गुड गुड। तो आपने माननीय सांसद महोदय जो कोल्लम लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, केरल राज्य में ये पड़ता है, इनका नाम NK प्रेमचंद्रन है, RSP पार्टी से आते हैं। देखिए इंग्लिश में ही इन्होंने पूरा अपना जो भी डिमांड है सरकार के सामने रखा हुआ है, क्योंकि वहां पर साउथ में इंग्लिश चलती है। आप में से कई लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन एज ए समरी मैं आपको बहुत जल्द इसका पूरा डिटेल बता दूं। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई हुई है कि केरल में 12,000-13,000 के आसपास जो है मानदेय सेविकाओं को दिया जाता है, जिससे उनका घर का खर्चा नहीं चलता है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि केरल में 13,000 भी दिया जा रहा है, फिर भी बढ़ोतरी की डिमांड की जा रही है सरकार से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है, मंत्रालय से रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन बिहार में 6,000 से भी कम मिलता है। अब इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि इससे डबल का अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं केरल जो है बिहार से थोड़ा महंगा स्टेट है, इसलिए वहां पर जो है थोड़ा सा पेमेंट ज्यादा है, लेकिन डबल होने के बाद भी वहां पर फिलहाल संतुष्टि नहीं है, केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। पहली बात की यहाँ पर माननीय सांसद महोदय ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से सेविका को 25,000, सहायिका को 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने का, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल उन्होंने सबमिट किया हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रिटायरमेंट के समय जब वो 15 साल, 20 साल, 30 साल इसमें काम करती है, तो रिटायरमेंट के समय एज ए ग्रेजुएटी के तौर पर कुछ भी नहीं मिलता उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाख रुपए जरूर मिलने चाहिए। तीसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका रिटायर हो जाती है, उसके बाद उनका कोई काम नहीं आता, जबकि इतना ज्यादा जिम्मेवारी का काम वो अपने कार्यकाल में सरकार के लिए करती हैं, तो उनको कम से कम 5,000 रुपए महीने का पेंशन सरकार निर्धारित करे। इन तीनों मुद्दों के साथ उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने उम्मीद किया कि सरकार इस पर जवाब जरूर देगी। देखने वाली बात होगी कि कब तक जवाब आएगा, क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र जो संसद का चल रहा है उसमें ये मुद्दा उठाया गया है। बात केरल की थी, लेकिन अगर केंद्र सरकार अमाउंट बढ़ाएगी, मानदेय बढ़ाएगी, तो हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में, हर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फायदा होगा। उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 3 बड़ी डिमांड्स मैंने बता दी, पूरा डिटेल आपको हिंदी में समराइज कर दिया। आई होप आप जितना हो सके वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको जानकारी मिले। फिलहाल इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।